अच्छा, हमारा जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है ये बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह काम करता है, ठीक है। कि ये बिल्कुल किसके ऊपर बेस होता है, फीडबैक्स के ऊपर। अब वो फीडबैक कैसा हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, और इट कैन बी हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक। Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we will discuss about the mechanism of homeostasis. अब अगर हम homeostasis की definition देखें, it is all about maintaining a stable internal environment. कि जो organism है वो अपना internal environment, अपनी body के जो अंदर का environment है उसको maintain करता है, किसके according to its external environment. Now the question is why animal do it? Animal ऐसा क्यों करता है? It is just because simple हमारे पास क्या है, to survive. क्या करने के लिए? To survive. अब हम इस चीज़ को ऐसे मिसाल के तौर पे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये सेल है किसी भी एनिमल की बॉडी का, कोई भी सेल है, ठीक है. एंड दिस सेल्स नीड्स सर्टेन कंडीशन टू फंक्शन प्रॉपरली. अब इसको एक सर्टेन कंडीशंस चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इट कांट बी टू हॉट or it can't be too cold, okay, and it also cannot be too acidic, okay, or too alkaline. Along all this, it also need the good supply of glucose and water. So to achieve all of this, our body regulates everything and keeps everything around the right level. So from all this, keep in mind that our body do not keep everything constant, ठीक है. मुसलसल चीज़ constant में नहीं होती, it fluctuates. How? For example, our blood sugar level and the body temperature, they do fluctuates. Okay. So as per the definition of homeostasis, it is the regulation of conditions inside the body to maintain a stable internal environment in response to both internal and external conditions. So the last bit of this definition, which is stable internal environment in response to both internal and external conditions. देखें, इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो भी फ्लक्चुएट करती हैं, जैसे कि मैंने बताया बॉडी टेम्परेचर एंड द ब्लड शुगर लेवल. अब जो एक्सटर्नल कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल if we walk in a snow or we walk in a desert, we can still keep our body temperature 37 degrees centigrade. How? By regulating our body. And to do this, our body use automatic control system, that is, and basically it recognizes the any kind of change from the optimal conditions. And what are the optimal conditions? Which means optimal words is used for the normal conditions, ठीक है. ऐसी कंडीशंस जो कि बॉडी को या सेल को, बॉडी के सेल को अपनी सर्वाइवल या अपना एक नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करने के लिए चाहिए होती हैं कंडीशंस, उनको बोलते हैं ऑप्टिमल कंडीशंस. सो बॉडी क्या करती है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करके रिकग्नाइज करती है क्या, एनी चेंज फ्रॉम ऑप्टिमल कंडीशंस, कि ऑप्टिमल कंडीशंस से कोई चेंज आ जाए, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या करती है, इट सेंड्स अ सिग्नल. क्या भेजती है, सिग्नल. अब वो सिग्नल क्यों भेजा जाता है, ताकि उस कंडीशन को या वो जो भी चेंज आया है उसको रिवर्स करने के लिए, टू रिवर्स द चेंज, so that the level, ठीक है, any level which has been changed by any kind of condition goes back to normal. अब ये सारा काम करने के लिए, ठीक है, to keep this work automatic, there is a system which is a automatic control system. और इस सिस्टम के बेसिक 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज रिसेप्टर्स, ठीक है, which detects the change. For example, the rise in temperature. And the second one is coordination system, which can be brain and the spinal cord.
and this coordination system interprets the this change, and decides what to do about it. Okay, सो अभी तक दो कंपोनेंट थे. रिसेप्टर्स ने क्या किया, किसी भी चेंज को डिटेक्ट किया, जिसमें एग्जांपल हमने लिया टेम्परेचर के राइज अप होने का. अब सेकंड सिस्टम का जो दूसरा हमारे पास रुकन है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन सिस्टम विच कैन बी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. इसने क्या किया, उस चेंज को इंटरप्रेट किया या रीड किया, और अब ये डिसाइड करेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कि इस चेंज के बारे में क्या किया जाए. Okay, now the third part of the component of the automatic control system is effectors. Effectors क्या करते हैं, they carries out the change. कि हमारे पास जो डिसाइड किया होता है कोऑर्डिनेशन सिस्टम ने किस चेंज के बारे में क्या करना है, और वो जो डिसीजन देता है वो इफेक्टर उस पर वर्क करता है और उस चेंज को नॉर्मल की तरफ लेकर आता है. अब इन इफेक्टर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, दे कैन बी मसल्स, ओके, विच कंट्रैक्ट आर रिलैक्स, और दे कैन बी ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स द हार्मोन. नाउ there is a small problem, okay, not some small, but there is a problem, okay, that these components of the automatic control system, they are present in different parts of your body. So you need a connection between them to send a signal so they can work properly. Okay, so now there will come two kind of system to help them. किस चीज में मदद करने के लिए, to send a signal between these components. Okay, number one is endocrine system and the second one would be nervous system. So now in these two systems we will discuss them in details in our next videos, but generally अगर इनका आइडिया अगर मैं आपको दे दूं तो endocrine system क्या है, it is all about the hormones and these hormones are released into the bloodstream, okay, as a signal. किसके तौर पे, सिग्नल के तौर पे रिलीज किए जाते हैं into the bloodstream to help the automatic control system. Now this endocrine system work in entire body, which means के hormones they travel throughout your body. Okay, which is a good thing कि मैसेज कहीं भी पहुंचाना हो तो कहीं भी सिग्नल पहुंचाना हो वो easily through this system it can reach. Okay, but here is a one thing. Okay, this can also make endocrine system as a slow system. Okay, so it is a slower system, long lasting, ठीक है, काफी लंबे अरसे तक ये सिग्नल्स रहते हैं एंड दे बट दे आर वेरी स्लो. ओके, एंड आल्सो more generalized than the nervous system. So now come to the nervous system. It is very fast plus very precise. Okay, and what makes it fast, because the nervous system as contrast to endocrine system, it generates the nerve impulses. Okay, like electric current in a wire. Okay, आप उसको ज़हन में रखो कि वो कितनी जल्दी कितनी स्पीड से आप कह सकते हैं ट्रेवल करता है. तो ऐसे ही हमारे पास नर्वस सिस्टम क्या जनरेट करता है, नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता है. अच्छा, ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं दे ट्रेवल थ्रू द नर्व्स. इनके जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक वायर होती है, एक तार होती है, ठीक है, तो ऐसे ही नर्व इम्पल्स के लिए भी एक वायर टाइप ही चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एज नर्व्स. ओके, अब क्योंकि नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रही है और क्योंकि वो बहुत स्पीड है उनकी, उन सिग्नल की वेरी फास्ट है, तो दैट्स मीन कि जब भी हमारी बॉडी को क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, जब क्विकली उसको रिस्पॉन्स चाहिए होगा, तो क्या कौन सा सिस्टम इधर आएगा, दैट वुड बी नर्वस सिस्टम, बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स क्विकली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी नीडल चुभ जाए या कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी नेल हो या कोई भी ऐसी चीज़, या आग के पास आपका हाथ चला जाए तो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स करना है, क्विक रिस्पॉन्स करना है, तो उस टाइम पे कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के साथ, दैट वुड बी नर्वस सिस्टम. सो स्टे अवे फ्रॉम नीडल्स. ओके, अब हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में
And second, we have discussed that how these components communicate with each other. ये एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, सिग्नल कैसे पहुंचाते हैं, जिसमें इनकी मदद के लिए कौन से सिस्टम आ जाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ओके, अब लास्ट में हमने क्या चीज़ समझनी है कि आया ये जो जितना भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम हमने पढ़ा है, इसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ये हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में वर्क कैसे करते हैं। ओके, हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। अच्छा, हमारा जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है ये बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह काम करता है। ठीक है, कि ये बिल्कुल किसके ऊपर बेस होता है, फीडबैक्स के ऊपर। अब वो फीडबैक कैसा हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, और इट कैन बी हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक। बिल्कुल, अगर आप इस कोई चीज़ को ऐसे एग्जाम्पल लेके समझो कि लाइक हम आवर सोशल मीडिया, अब अगर फेसबुक है या कोई भी सोशल मीडिया है, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कोई अच्छा काम हो रहा है तो कमेंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइक्स ज़्यादा आएंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो उससे क्या चीज़ होगी, वो चीज़ मज़ीद पॉजिटिव फीडबैक आया तो उससे जो कंटेंट क्रिएटर होगा वो मज़ीद इन्हेंस होगा, उसकी चीज़ मज़ीद आप कह सकते हो स्प्रेड होगी, फैलेगी और वो मज़ीद चीज़ें बनाएगा। तो इस फीडबैक को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। इससे क्या हुआ, उसकी एक्टिविटी में इजाफा हो गया। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कंटेंट अच्छे नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते, मतलब हमारे जो नॉर्मल मॉरल वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होते, तो कमेंट्स कैसे आना शुरू हो जाते हैं, ख़राब आना शुरू हो जाते हैं, लोग डिसलाइक करना शुरू हो जाते हैं, व्यूज़ कम होना शुरू हो जाते हैं। तो वो कैसा फीडबैक जा रहा है, नेगेटिव फीडबैक जा रहा है कि भाई जो तुम नॉर्मल एक्टिविटीज़ से हट के काम कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी डन। ओके, सो दैट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक। इससे क्या हुआ, जो भी चेंज वो ला रहा था, ठीक है, उसको क्या किया, दोबारा नॉर्मल पे लाने के लिए फीडबैक दिया गया और उस चीज़ को रोका गया, तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि कोई चीज़ अगर अच्छी हो या चीज़ ओवररेटेड हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक जो है हमारे पास फ़ायदेमंद तो है ही है, लेकिन इट कैन बी हार्मफुल समटाइम्स। ओके, एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव फीडबैक, अगर मैं इसको सोशल मीडिया की नज़र से देखूं तो मतलब अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड कर दोगे तो वो भी अक्सर ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल से अगर वो ज़्यादा एक्सीड हो रही हैं, व्यूज़ भी, लाइक्स भी, और वो चीज़ ओवर रेटेड है, तो इट कुड बी हार्मफुल समटाइम्स। तो बिल्कुल ऐसे ही ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, इट कंट्रोल्स आवर बॉडी बाय द नेगेटिव फीडबैक ऑफ आवर बॉडी, positive feedback and harmful positive feedback. So that's it for this video. I hope you enjoyed. See you next time. Take care. Allah Hafiz.